aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll discuss the Hindu analysis dated 28th August 2021. So let's start today's discussion. The first article states Deepar Bhil breathes easy after the eco-sensitive zone notification. Now, if you read this article, it is talking about the place that is known by Deepar Bhil. It is in Assam and it has got a notification of being an eco-sensitive zone. So on 25th August, a Ministry of Environment and Forest Climate Change notified the eco-sensitive zone of Deepar Bhil Wildlife Sanctuary on the southwest edge of Guwahati. So this is a proper geographical location of this wildlife sanctuary, which is in southwest of the Guwahati, which is in Assam. Romila Borao, a resident of Chakardhaw Sanctuary, Guardian Village, hopes the notification will be. Now, what has this happened? If we speak of Deepar Bhil, it is an eco-sensitive zone for our India, or we can say it is a place of many biodiversity. Okay? It has many different species and biodiversity that existing this place. So recently this place has been notified or announced as an eco-sensitive zone. So when it comes about eco-sensitive zone, under this zone you can't do any type of infrastructural buildings or anything that can harm the environment. This area is more prone to the securing it for the animals and for the species, the diversity that lives there. So it was in 2014 that the husband Koliha Boro was run over by a train while trying to stop it to prevent the hitting of an approaching herds of elephant. He was the one of the earliest conservationists of the area. The zonation should help, but the Deepar Bhil water has become toxic and lost much of its aquatic plants and elephants would feed on. So, if we speak of its importance, Deepar Bhil is one of the largest freshwater lake of Assam and state's only Ramsar site, beside being an important bird area. So, Deepar Lake, if we speak, it's important aquatically. Then birds, then elephants. These are some special features of Deepar Bhil. So now this article was important for us to know about this location, about the wetland, about the Ramsar site, or many other things. So Deepor Bhil or Deepar Bhil, it is also called as Deepor. Deepor Bhil is Assam's only Ramsar site. It is the only Ramsar site of Assam in the Kamram district. And if we speak why was it in news, it was currently because the administration or the district administration of Assam has prohibited the community fishing at Deepor Bhil. Why? Because Deepor Bhil, if we see, it is more of aquatic, it has more of aquatic species, but it was seen that the water of that lake was polluted and contaminated. So to conserve it properly, they have prohibited fishing in that area. Deepor Bhil is also spelled as Deepor Bhil, and permanent freshwater lake, and it is a channel of Brahmaputra river. Deepor Bhil is a channel of a Brahmaputra river. It is a freshwater lake. So yeah, freshwater, then channel of Brahmaputra river. Okay, and it is an open lake basin which is a set of inflow and outflow channel. It becomes a source of or it is a part of inflow as well as the outflow source of water. It is a wetland, large aquatic body in Assamese. Okay, it is a wetland, as we say, it is a Ramsar site. So being a Ramsar site, it is a wetland, and it is the largest aquatic body for the Assamese, for the people who live there. Bhils जो बोलते हैं हम लोग, या भील, it actually means wetland. ठीक है, तो दीपोर भील जो बोथ, अगर हम बात करें दीपोर भील, जो हमारा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी रहता है इसका, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ प्लेस टू मैनी ऑफ दी एक्वेटिक एज वेल एज दी फॉरेस्ट एनिमल्स. It is categorized as the representative of the wetland type. Okay, and it is a bird sanctuary.
इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर मैनी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटिव बर्ड्स के घर भी हैं हमारे दीपोर भील का। ना हम थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा दीपोर भील जो है इज़ वन ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और इसको जो ये डेजिग्नेशन दिया था, इट वाज गिवन इन 2002। 2002 में इस एरिया को रामसर साइट अनाउंस किया गया था, ठीक है। करेंटली अगर वहाँ पे देखा जाए 2002 में जब दिया गया था, तो इट वाज अ होम टू ऑलमोस्ट 209 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड। 209 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड के घर थे उधर, और अभी भी हैं, बट उतने नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। देन अकॉर्डिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाम गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर किया कि यू हैव टू डिक्लेयर दीपोर भील एज अ इको सेंसिटिव जोन, सो दैट वहाँ का जो कंजर्वेशन खराब हुआ है उसको आप वापस कंजर्व कर सको थ्रू दिस मीन्स. So, due to the richness of the fauna, it enjoys to be selected as one of the most important bird area as by the BirdLife International. ठीक है, टोटल जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो 4.14 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये एरिया फैला हुआ है, एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी बाय द आसाम गवर्नमेंट इन 1988 में आसाम गवर्नमेंट ने दीपोर बिल को प्रॉपर बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था. सो लिस्ट ऑफ बर्ड सेंचुरी में एक हमारा ये भी पार्ट आता है. अब मेजर कंसर्न क्यों उठ रहा है? मेजर कंसर्न इसके लिए उठ रहा था, करेंटली वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट जो एरिया है वेटलैंड का वहाँ पे वो कहीं ना कहीं इट इज़ श्रिंकिंग, कम हो रहा है वो, ठीक है. ये एक मैनेजमेंट कंसर्न आ रहा है वहाँ पे. सैटेलाइट इमेजनरी से जो रिवील किया गया है कि इट हैज़ बीन श्रंक बाय एटलीस्ट 35%. हमारा दीपोर बिल का जो वेटलैंड है इट इज़ बीन श्रंक बाय 35% ऑफिशियली अब तक जो बोला जा रहा है, ठीक है. सो जो एक्चुअल ज़मीन था उससे भी कुछ हेक्टर्स कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ दीपोर बिल. अब रीजंस अगर मैं बात करूँ, रीजंस क्या हैं अबाउट इट्स श्रिंकिंग और अबाउट इट्स जोग्राफिकल जो भी उनके साथ हो रहा है. द वेटलैंड इज़ अ प्रीशियस स्टेट बिकॉज इट्स लूजिंग द कनेक्टिविटी विद द रिवर्स. बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग क्या हुआ है, जो अलग अलग स्मॉल रिवर्स हैं जो कि दीपोर भील लेक से कनेक्टेड हैं और जिसका आउटफ्लो इनफ्लो बनता है दीपोर लेक, उससे कनेक्टिविटी ख़त्म हो रही है उसकी. बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग की वजह से लैंड बढ़ रहा है, वो ज़मीन में पानी कम हो रहा है, तो जो उसकी कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी टूट जा रही है. रिवर्स लाइक कलमोनी का, फिर कनोजन, बसिस्था, ये सब कुछ रिवर्स है जिससे उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है. दूसरा रीज़न देखा गया डंपिंग ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वेटलैंड एट बोरा गाँव. वहाँ पे देखा गया था कि म्यूनसिपल की जो वेस्ट है वहाँ पे डंप किया जा रहा था, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न. थर्ड रीज़न अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस एरिया में, ठीक है, जिसकी वजह से ओरिजिनल वाटर कंटेक्ट जो है उसका वो भी कम हो रहा है. एनक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल चैनल्स थ्रू गुवाहाटी एंड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स. एनक्रोचमेंट इज बिकमिंग अ थ्रेट टू दी इकोसिस्टम नियर द एरियाज ऑफ दीपोर भील. सो ये कुछ कंसर्न्स है दैट आर बी कंटिन्यूसली रेजिंग, जिसकी वजह से अभी हमें दीपोर भील को जो है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, सो दैट जो भी बचे हुए उधर की कंजर्वेशंस हैं या जो भी बचे हुए बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उसको कंजर्व करके उसको और बढ़ा सके. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ आर्टिकल में आया था. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. इट स्टेट्स दैट बिगिन हियरिंग प्लीज ऑन आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, ठीक है ना. ये क्या हुआ है, ये चीज़ नोटिस किया गया था कि देयर वाज मेनी पेटिशंस विच वर साइन और मेनी पेटिशंस विच वर सेंड अबाउट द रिलेटेड टू द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिस पर कि ये चीज़ बोला गया कि आपको उसकी हियरिंग सुनवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी. MV Terigami, Communist Party of India leader and spokesperson of People's Alliance for Gupkar Declaration, has urged Supreme Court to begin the hearing petition that challenged the centre's abrogation of Article 370 and bifurcation of Jammu Kashmir and Union Territory. Several petitions, including one of by the Mr.
तेरिगमी had been waiting in the Supreme Court for nearly 2 years. 2 years से petitions continuously दिए जा रहे हैं related to it. 2019 में एक 5 जज के बेंच बैठे थे जो कि इसके रिलेटेड सारी हियरिंग्स और सारे पेटिशन सुन रहे थे, बट फिर उसके बाद बंद कर दिया गया, जो कि वापस से अर्ज किया कि स्टार्ट हियरिंग दी पेटिशंस. अब पेटिशन चैलेंज क्या कर रहा था, तो इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अबाउट द अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370. Immediately after that, a strict security lockdown was imposed in Jammu and Kashmir that lasted for over a year. हमने देखा था जैसे 370 अबॉर्गेट किया गया था, उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था उस एरिया में. हमारे मिलिट्रीज और सबको तैनात रखा था वहाँ पे, ताकि कुछ ऐसे बड़े लार्ज स्केल पे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स ना हो. ठीक है. सो दैट लास्टेड फॉर ओवर अ ईयर अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, मंथ लॉन्ग इंटरनेट शटडाउन, ये सब कुछ कुछ कर दिए गए थे, सो दैट कि आगे मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग ना हो सको विच कैन हार्म द पीपल इन दैट एरिया. सो इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल आया था कि आप उसकी वापस से चेक करो कि क्या क्या पेटिशंस हैं. हमारे लिए पेटिशंस तो आते रहेंगे आगे, और हमारे लिए आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है अबाउट विल स्टडी अबाउट दी अबॉर्गेशन और अबाउट दी आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 क्या था, क्या है, क्यों उसको अभी बंद करने के बाद वो क्या बन चुका है, वो कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे. सो सबसे पहली चीज़ 5 अगस्त 2019 को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना पावर प्रैक्टिस किया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 क्लॉज 1 को हटाया. दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर. ठीक है, तो उसको हटा दिया था उन्होंने आर्टिकल 370 को. अब इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, तभी आपको इसके बारे में समझेगा. सो बैकग्राउंड में 17 अक्टूबर 1949 को हमारा ये आर्टिकल 370 ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में. इट वाज ऑन 17 अक्टूबर 1949. 1949 में ये आर्टिकल 370 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एज अ टेम्पररी प्रोविजन विच एग्जेम्प्टेड जम्मू कश्मीर एंड इट्स परमिटिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें ये दिया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये खुद का एक रूल बना के या खुद का एक गवर्नमेंट बना के ड्राफ्ट करके उसके हिसाब से अपना पावर यूज़ करेगी. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिस्टर एन गोपाल स्वामी अय्यनगर एज एन आर्टिकल 306A. आर्टिकल 306A के अंदर उन्होंने ये चीज़ क्लॉज इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा ऐसा हम करेंगे रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. अब थोड़ा सा आर्टिकल 370 के बारे में देखें. ये हिस्ट्री था कि आर्टिकल आया कहाँ से है. आर्टिकल 370 के बारे में देखें तो आर्टिकल 370 एम्पावर करता है जम्मू कश्मीर को, या हम अगर प्रॉपर बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एम्पावर्ड टू रिकमेंडेड विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अप्लाइड टू द स्टेट. Jammu Kashmir Constituent Assembly was dissolved after it drafted the state's constitution. Clause 3 of the Article 370 gives power to the President of India to amend its provision and its scopes. तो प्रेसिडेंट के हाथ में होल एंड सोल पावर था रिलेटेड टू इस. फिर उसके बाद आर्टिकल 370 के बाद साथ और एक आर्टिकल के बारे में बात किया जा रहा था जब ये सब इतना केओस था रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर. दैट वाज आर्टिकल 35A. 35A जो है वो 370 का ही एक पार्ट है, विच वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954. 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर ये इसको भी लाया गया था इन द रिकमेंडेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. 35A की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जम्मू कश्मीर को एक प्रॉपर पावर देता है दैट डिफाइंस द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट्स एंड देयर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस. तो अगर 35A जो है वो ये चीज़ बताता है कि कौन कौन हमारे जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हो सकते हैं. बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर आपके क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं. ठीक है. सो हमारे अपेंडिक्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पार्ट आता है. 35A के बारे में जिक्र किया है अपेंडिक्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कहीं ना कहीं अगर हम राइट्स के बारे में बात करें, सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर के राइट्स जो हैं वो पूरी 35A पर
निर्भर थी। ठीक है, तो जब से आर्टिकल 370 हटाया, उसके साथ आर्टिकल 35A भी हटाया था, स्टेटिंग कि अलग से उनको कोई अभी राइट्स नहीं चाहिए। बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के राइट्स ही फॉलो करेंगे सेम। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 हैज़ रिप्लेस द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। तो 1954 में जो आर्टिकल आया था रिलेटेड, उसको हटा दिया गया 2019 में 5 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि हमारा एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल रिलीज़ हुआ था 2019 में, जो जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर रहा था 2 यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, प्रॉपर। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टेट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी। नहीं तो यूजुअली यूनियन टेरिटरी ही कोई स्टेट बनता है। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम जब स्टेट को कोई यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स करेंटली विद द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, 5 विल रिमेन इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 विल बी अलॉटेड टू लद्दाख। तो जो 6 सीट्स हैं लोकसभा में, उसमें से 5 जो है जम्मू कश्मीर को मिलेंगे और 1 जो है वो हमारे लद्दाख को दिया जाएगा। The Union Territory of Jammu Kashmir will have an assembly like Delhi and Puducherry. ठीक है, and instead of 29, India has now total 28 states. So 28 states हैं और हमारे यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर की अगर मैं पावर बात करूँ तो गवर्नर हमारे जो है गवर्नर फंक्शन करते हैं। गवर्नर इज द हेड ऑफ दैट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी। एंड इधर की जो टर्म है, इट इज़ अ 5-year टर्म, नॉट 6-year टर्म्स। सेक्शन 32 ऑफ जम्मू कश्मीर 2019 बिल प्रपोजेज दैट असेंबली कैन मेक लॉज। ठीक है, आफ्टर मेकिंग चेंजेस ऑफ आर्टिकल 370, वहाँ पे भी अभी लॉज बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू आर्टिकल 239A। ठीक है, जिसमें कि वो पावर उनको दिया जाता है। तो स्पेशल स्टेटस आज तक जो दिया जाता था जम्मू कश्मीर को, वो हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को बाय रिमूविंग और अब्रोगेटिंग द आर्टिकल ऑफ 35A एंड 370। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें हमारे लिए ज़रूरी थी। अब अगर एक कंसर्न ये भी आता है कि क्यों ज़रूरी था ये चीज़ हटाने का, कहीं ना कहीं इट वॉज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव दिस आर्टिकल, बिकॉज वहाँ पर ये ऑटोनॉमी बन रहा था वहाँ के गवर्नमेंट का। सो टू ब्रेक दिस ऑटोनॉमी ज़रूरी था ये आर्टिकल हटाने का। दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट के पर्सपेक्टिव से तालिबान जो मतलब अभी का जो तालिबान है, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में भी तालिबान का थोड़ा इंटरफियरेंस था। पाकिस्तान सच ले स्टेट्स का भी कहीं ना कहीं रीअप्रोचमेंट बहुत हो रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू रिमूव द आर्टिकल ऑफ 370 एंड आर्टिकल 335A। वो अलग बात है कि हमें बहुत चैलेंजेस भी फेस करने पड़े उसकी वजह से, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज हमें फेस करना पड़ा। उसकी वजह से फेडरलिज्म पे इशू उठा कि किस पर्सपेक्टिव से आप काम करोगे। मिलिटेंसी में भी देयर वाज अ राइज इन मिलिटेंसी। ठीक है, सो चैलेंजेस हमें देखने पड़े उसकी वजह से कहीं ना कहीं, बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड जम्मू कश्मीर बीइंग अ स्टेट भी कहीं ना कहीं चेंजेस ला रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि आर्टिकल 370 होता क्या है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया एम्स फॉर अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक्ट दिसंबर। तो ये न्यूज़ क्यों आया गया था? तो ये न्यूज़ इसके लिए आया है क्योंकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का एक मतलब ट्रीटी हम बोल सकते हैं या पैक्ट साइन हुआ है, जो कि दिसंबर से पहले साइन होगा। एंड इट इज़ बेसिकली टॉकिंग कि हम हमारा अर्ली हार्वेस्ट पैक्ट इज़ बेसिकली उससे पहले हम हमारा ट्रीटी साइन करें। ट्रीटी के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल met Australia's Minister for the Trade, Tourism and Investment Dan Tehan virtually on Thursday to discuss the roadmaps for concluding the Comprehensive Economic Cooperation Agreement. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट की बात करें तो इट इज़ एन एग्रीमेंट जो दो कंट्री साइन करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्री व्हेन इट कम्स अप टू ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म, व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज। तो जैसे कि FTA है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वैसा ही व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक पार्ट, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी और ऑफ अदर रीजन्स, ठीक है, तो उसमें हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन होता है। तो सेम साइन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हुआ है। द मीटिंग कम्स विद 3 weeks ऑफ विजिट टू न्यू दिल्ली बाय द ऑस्ट्रेलियन
Prime Minister's Special Envoy to India, Tony Abbott. Australia views India as a long-lasting, valued and trusted partner. ये हमारे जो फॉरेन डेलीगेट आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनका ये मानना है. ठीक है. नेक्स्ट अगर पाथवे टू CA के बारे में देखें, द मिनिस्टर नोटेड द इम्पोर्टेंस दैट नेगोशिएशन टेक इनटू अकाउंट द व्यू ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, अदर स्टेक होल्डर्स, डिसाइडेड द कंसल्टेशंस. ठीक है. सो हमारा जो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, ये इसी चीज़ के बारे में काम करता है. व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबके पर्सपेक्टिव में ही हमारा काम करता है. सो ये जो ट्रेड डील साइन हुई है, ट्रेड डील दिसंबर से पहले प्रॉपर जॉइंट वेंचर्स के थ्रू किया जाएगा. द हार्वेस्ट एग्रीमेंट विल बी वे फॉरवर्ड फॉर एन अर्ली कंक्लूजन, मतलब टू कंक्लूड दिस ईयर्स एग्रीमेंट और टू कंक्लूड दिस ईयर्स ट्रीटीज विद ऑस्ट्रेलिया एंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ये ट्रीटी साइन की जा रही है अंडर द बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट. The statement comes a day after the Commerce Minister Mr. Piyush Goyal and his counterpart Mr. Dan Tehan had a trade-related discussion over a video call. So far there has been 3 rounds of talk. हमारे दोनों मिनिस्टर्स के बीच में 3 rounds of talk हो चुके हैं, नेगोशिएशंस हो चुके हैं दोनों कंट्रीज़ में रिलेटेड टू द ट्रेड. ठीक है. और ये चीज़ अनाउंस किया गया कि दिसंबर 2021 से पहले दे विल क्लोज ऑफ द ट्रेड. क्लोज ऑफ द ट्रेड मतलब इस ईयर के ट्रेड के रिलेटेड. द नेगोशिएशन विल टेक इनटू कंसिडरेशन द व्यू ऑफ बिजनेस. ठीक है. बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन हो गए. ये सब के रिलेटेड जितने भी अगर कोई भी एग्रीमेंट्स साइन जो हुए हैं वो दिसंबर से पहले क्लोज अप कर दिए जाएंगे. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि क्या साइन हुआ है और कब ख़त्म होगा. Now we'll move to the last article. It states that Ministry agrees to allow 7 Himalayan hydel projects. अगर इसकी बात करें तो ये हमारा ऑलमोस्ट 2 साल से कंसर्न हमारे लिए बहुत बड़ा हो चुका है. तो बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये. सबसे पहली चीज़ क्यों कंसर्न है, क्योंकि अगर हम हिमालय का पोजीशन देखें, जो हिमालय हमारे हैं, ठीक है, 3 सिंटिकल बेंड्स हैं. चाइना की तरफ अगर हम देखें तो चाइना अपने इधर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट हो चुका है. ऑलमोस्ट उनका प्रोजेक्ट जो है उनकी प्रोजेक्ट कुछ 500s में जा रहे हैं, जो कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग बनाएंगे. ठीक है. सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे क्यों उठता है, क्योंकि ये साल भी 6 महीने पहले जब ये हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट ओनली. सो क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हो, आप यहाँ के जो मूवमेंट्स हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं या जो नेचर है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करोगे इसकी वजह से हमारे अपल्चेस बेसिकली लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं. इंडिया में लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देगा. 6 महीने पहले भी सेम एक डिस्ट्रक्शन हुआ था इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइडल प्रोजेक्ट उस टाइम पर चालू था काम. तो ये कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा. मिनिस्ट्री ने अग्री कर दिया है 7 हाइडल प्रोजेक्ट्स, हिमालयन हाइडल प्रोजेक्ट्स, जो कि हमारे हिंदकुश पे बनेंगे. ठीक है. हिंदकुश इस बेसिकली अगर हम हमारा माउंटेन्स देखें, हमारे 3 सिंटिकल बेंड्स हैं. जो सबसे नीचे है उसको हम शिवालिक बोलते हैं. ठीक है. ये ग्रेटर है, सॉरी शिवालिक इज़ द मिडिल वन. ठीक है. ये लेसर है. ठीक है. सो हिंदकुश जो है हमारा, हिंदकुश ये वाला पार्ट है, 3rd वाला, दैट इज़ द ग्रेटर वन. वहाँ पर 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स का बताया है कि बनाएंगे. 6 महीने पहले ही सेम ऐसा लैंडस्लाइड आया था जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी. एंड इट एक्चुअली डैमेज्ड द एनवायरनमेंट ओवर देयर. 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये डैमेज हुआ था. According to the affidavit filed in the Supreme Court this month as the part of the ongoing case of the feasibility of hydroelectricity projects in aftermath of 2013 Uttarakhand flood, 7 projects have been allowed to continue or to complete the construction. क्यों अलाउ किया गया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शंस के जो ओनर हैं या जो
ओनरशिप जिनका है उनका ये मानना है कि ये हाइडल प्रोजेक्ट्स के 50% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो ही चुका है. सो ये क्लॉज की वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया है to complete the construction primarily on the ground that they were almost over 50% complete. They include total 512 megawatt तो तोपवन प्रोजेक्ट दैट वॉज सीवियरली डैमेज. ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है. नो अदर न्यू प्रोजेक्ट्स वुड बी अलाउड. ये 7 के बाद कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स अलाउ नहीं किया जाएगा. टू रीच गंगा एंड दो सैंक्शन वुड बी अबाइड बाय द एनवायरमेंट रेगुलेशंस. 2016 में यूनियन मिनिस्टर Mrs. Uma Bharti had contested the establishment of these projects and taken the oppose of Environment Jal Shakti Ministries. 2019 में डॉक्यूमेंट्स ये बताता है कि there was a change in the accommodate of this 7 projects. प्रॉपर 7 प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा तहरी स्टेज एक प्रोजेक्ट है, Theri stage, then Topavan, then Vishnugad, Pilpokoti, Singholi, भतवारी, पठा, भुवियान, फिर मध्य महेश्वर, काली गंगा 2. ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 7 टाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हिमालय पे बनने वाले हैं. आई रिपीट द नेम: तहरी स्टेज 2, तोप 1, विष्णुगढ़, पीपालकोटी, देन सिंगोली, भरतवरी, पठा, भुवियांग, देन मध्य महेश्वरी, काली गंगा 2. ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो कि हिंद कुश पर बनने वाले हैं या बन रहे हैं. Activist says that governments pushing ahead the project revealed the flood of February that had failed to join the government. There was 2 projects, Singholi Bhatwari and Fata भुवियांग, विच वॉज स्पेशली लिंक्ड विद द केदारनाथ ट्रेजेडी. जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुआ था 2011 में, उस कहीं ना कहीं ये 2 हाइडल प्रोजेक्ट मेन रीज़न बनते हैं उस ट्रेजेडी के. ये रिपोर्ट्स बोला जाता है, डेटा का ये मानना है, ठीक है. और फिर जो विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, इट हैज़ एक्चुअली रिजल्ट फ्लड्स इन फेब, ठीक है, जो कि अभी हुआ था जिसमें 200 से ज़्यादा लोग की मौत हुई. इट वॉज बिकॉज ऑफ द विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट. The affidavit has the government admitting that the floods have damaged the tunnels and topography of that project. Topography is the geographical location of that project. This project got the environment clearance based very different condition. So how they have been allowed to be in the environment clearance? ये क्वेश्चन उठा है कि अगर ये हमारे environment को इतना severely affect कर रहे हो, how can you allow it to complete it? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न भी उठता है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा. लैंडस्लाइड्स और हमने जितने भी सुनामीज या जितने भी लैंडस्लाइड्स या डिज़ास्टर्स जो देखे हैं हिमाचल में, वो बहुत ही सीवियर हुए हैं. 1-2 में नहीं, बट लोगों मतलब हज़ारों में और लाखों में लोगों की जान गई है या फिर दे हैव बीन इंजर्ड. सो फिलहाल के लिए तो ये 7 प्रोजेक्ट्स दिए हैं एंड गवर्नमेंट ने अश्योरिटी दिया है कि ये 7 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के और कोई प्रोजेक्ट्स आगे हम नहीं बनाने देंगे. सो यही कुछ आर्टिकल्स थे जो आज के न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट थे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू अंडरस्टूड एंड इफ़ यू लाइक डिट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.